اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ گلے شکوے بھلا کر اور گلے مل کر مبارکباد دینے کا دن عید الفطر مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ کراچی، اسلام آباد، لاہور سمیت تمام چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید کے روح پرور اجتماع۔ صدر آصف زرداری نے نواب شاہ، وزیر اعظم شہباز شریف اور نون لیگی صدر نواز شریف نے جاتی عمرہ لاہور میں نماز عید ادا کی۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ، حسن حسین نواز اور حمزہ شہباز بھی موجود تھے۔ بلاول بھٹو نے گڑھی خدا بخش میں نماز عید پڑھی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے ڈیرہ اسماعیل خان میں عید کی نماز ادا کی۔ گورنر ہاؤس کراچی میں گورنر سندھ کامران ٹیسوری، خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار اور دیگر معززین کی شرکت۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے پولو گراؤنڈ میں نماز عید ادا کی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے فیصل آباد میں نماز عید پڑھی۔ آرمی چیف کا جنوبی وزیرستان اور ڈی آئی خان کا دورہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل سید عاصم منیر نے مغربی بارڈر پر جوانوں کے ساتھ نماز عید ادا کی۔ عید الفطر کی نماز میں پاکستان کے استحکام اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ سپاہ سالار نے جوانوں کو عید کی مبارکباد دی۔ آرمی چیف نے قوم کے لیے جوانوں کے عزم اور مثالی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا، بلا شبہ پورے عزم اور بہادری سے مادر وطن کا دفاع کر رہے ہیں۔ جنرل سید عاصم منیر نے کے پی میں مسلح افواج قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی کو بھی سراہا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، مسلح افواج اور سربراہان کی جانب سے قوم کو عید کی مبارکباد۔ صدر آصف زرداری کہتے ہیں، اصل خوشی دوسروں کے ساتھ خوشیاں بانٹنے میں ہے۔ وزیر اعظم نے کہا، عید الفطر خوشی، شکر گزاری، اخوت اور ہمدردی کا درس دیتی ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق چیئرمین چیف آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز نے اپنے پیغام میں کہا کہ عید الفطر اتحاد، ہمدردی اور شکر گزاری کی علامت ہے۔ ہمارے جوانوں کے لیے اصل عید وطن کے دفاع کا اعزاز ہے۔ یہ موقع ہمیں اپنے قومی ہیروز کی بہادری اور قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر سے ٹیلی فونک رابطہ، پروفیسر ڈاکٹر محمد یونس کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کی۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مزید مضبوط بنانے کی مشترکہ خواہش کا اعادہ۔ وزیر اعظم کا دو طرفہ تعلقات کی بحالی کے لیے ادارہ جاتی نظام بحال کرنے کی ضرورت پر زور۔ کہا، پاکستان کے نائب وزیر اعظم اپریل میں دورہ ڈھاکہ سے متعلق پر امید ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی اہل وطن کو عید کی مبارکباد۔ کہا، عید پر نادار لوگوں کی مدد کرنا مقبول عمل ہے۔ عید پر وطن کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ عید پر شہداء کے خاندانوں کو بھی یاد رکھا جائے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا، عید الفطر ملت اسلامیہ کی اجتماعیت اور یگانگت کا مظہر ہے۔ اتحاد اور ملی یکجہتی کو فروغ دے کر عظیم قوم بن سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی بھی قوم کو عید کی مبارکباد۔ تمام اہل وطن کو چھوٹی عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ اللہ پاک یہ چھوٹی عید کی خوشیاں اس ملک کے لیے اسی طرح میٹھی اور اچھی ثابت ہوں۔ ہمارے ملک میں اللہ پاک جو ہے وہ بہت امن اور سکون رکھے۔ خوشیاں ہمیشہ بانٹنے سے ہی بڑھتی ہیں۔ عید کی خوشیوں میں ارد گرد کے لوگوں کو بھی شامل کریں۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی اہل وطن کو عید کی مبارکباد۔ ویڈیو پیغام میں کہا، حکومت پنجاب عید پر ہر طرح سے حفاظتی انتظامات یقینی بنا رہی ہے۔ چھوٹی عید آئی، ڈھیروں ڈھیر خوشیاں لائی۔ گھر گھر دعوتوں کا اہتمام، ذائقے دار سویاں، شیر قورمے، کھیر اور دوسرے میٹھے پکوان تیار۔ کہیں بریانی تو کہیں کڑاہی گوشت سے تواضع۔ بچے بھی رنگ برنگے کپڑے پہنے عیدی جمع کرنے میں مصروف۔ مٹھائی کی دکانوں پر رش، دلکش اور رنگ رنگ دل موہ لینے والے عید اسپیشل کیک شہریوں کی توجہ کا مرکز۔ بہت زیادہ عیدی ملی، ہم بہت زیادہ خوش ہیں اور ہم اپنی من پسند چیزیں کھائیں گے، یعنی کہ برگر۔ جب گھر والے سوئیں گے تو ہم اپنی من پسند چیزیں کھانے چلے جائیں گے۔ ہمیں بہت زیادہ عیدی ملی، ہم بہت ساری چیزیں کھائیں گے۔ عیدی تو جمع کروں گا، کچھ اچھی سی چیز اپنے لیے دیکھوں گا، یا تو پھر کچھ کسی کو اپنے والدین کو کچھ گفٹ دوں گا، یا پھر کسی کو کچھ اچھا سا دوں گا۔
छोटी ईद पर बच्चों की खुशी ईदनी ईदी बटोर कर खर्च करने की ठान ली। नमाज ईद के बाद बच्चों ने मेलों का रुख कर लिया। खूब बिरयानी, चाट और गोलगप्पे के मजे ले लेकर झूले लिए। नवाब शाह में भी बच्चों की मौज मस्तियां ईदी वसूल करके तफरीही मकामात का रुख कर लिया। कोयटा में भी बच्चे झूलों और ऊंट की सवारी से लुत्फ अंदोज होने में मसरूफ। कुछ मनचले साहिल पहुंच गए। कराची के दारुल सुकून में ईद का दिन खुशियों से भरपूर। अपने प्यारों से दूर रहने वाले बुजुर्गों ने ईद को मोहब्बत और अपनायत के साथ मनाया। खुशबू बिखेरते पकवान, मोहब्बत भरी मुस्कुराहटें, हंसी मजाक के रंग बिखर गए। नमाज ईद की अदायगी के बाद शहरियों का मुख्तलिफ कब्रिस्तानों का रुख। अपने प्यारों की कब्रों पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाया, फातिह ख्वानी की। मरहुमीन के इस साल सवाब के लिए खुसूसी दुआएं। शहरी कहते हैं ईद की खुशी तो है, लेकिन साथ ही साथ अपने प्यारों के बिछड़ने का दुख भी है। माँ बाप का नैन बदल नहीं है। वो खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनके माँ बाप होते हैं। जब हम नमाज पढ़ते थे ईद के टाइम तो हम सीधे अपने माँ बाप के कदमों के पास जाते थे। अब जो है ना हम इनको मिस करते हैं तो सीधे कब्रिस्तान आते हैं। कई 100 नौजवान स्ट्रीट क्राइम में तो मारे जाते रहे हैं, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई। 100 के करीब ऐसे मासूम बेगुनाह शहरियों को डंपर और टैंकर के तले कुचलकर उनके घरों में उनकी लाशें भिजवाई गई। डंपर्स की दहशतगर्दी ने कई खानदानों को सोगवार कर दिया। आज दिल बहुत दुखी है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, डंपर्स माफिया शहरियों की जानें ले रहे हैं। MQM कैनाल्स के मामले पर सिंध के अवाम के मौक़िफ़ की हिमायत करती है। फारूक सत्तार का कहना था कि कराची में दहशतगर्दों के सहूलतकार मौजूद हैं। हुकूमत दहशतगर्दी और मुआशी बेहतरी के लिए काम करे। बेगुनाह मासूम शहरियों को जिस तरह डंपर और टैंकर माफिया ने अपनी दहशतगर्दी के ज़रिए से इस दुनिया से रुखसत कर दिया, उनसे उनका जीने का हक छीन लिया, उसकी मजम्मत आज भी हम करते हैं। वफाक को पता है कि वो पीपल्स पार्टी की वजह से हुकूमत में है। पीपल्स पार्टी अवामी वोटों से वफाकी हुकूमत को गिरा भी सकती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कनास नहीं बनेगी। कनास के मामले पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है ताकि साख मुतासिर हो। सिंध के खिलाफ कोई भी साजिश हुई तो पीपल्स पार्टी वो साजिश नाकाम बनाएगी। कोई मुतालबा चाहे कितना ही जायज़ क्यों ना हो, वो दहशतगर्दी का जवाब नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में नमाज ईद उल फितर की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मासूम लोगों को हलाक करना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहदा की फैमिलीज कौम की मोहसिन हैं। शहदा की कुर्बानियों की वजह से आज कौम ईद की खुशियाँ मना रही है। पार्टी और हुकूमत सिंध बुनियादी तौर पर दरिया सिंध पे किसी भी किस्म के कैनाल के खिलाफ हैं और मरते दम तक हम उसके खिलाफ रहेंगे कि कैनाल नहीं बनेंगे, कैनाल नहीं बनेंगे, कैनाल नहीं बनने देंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहतरम शहबाज शरीफ साहब से कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप इंटरवीन करें, आप हम सबके बड़े हैं, आप इस वक्त प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर हैं, आप इंटरवीन करें प्राइम मिनिस्टर साहब और आप ऐलान करें कि ये प्रोजेक्ट जो है बिल्कुल खत्म किया जाता है। तनाज़ कभी बनेंगी ना ही बनने देंगे। पीपल्स पार्टी नहरों के खिलाफ थी और रहेगी। कौमी यकजहती के लिए ईद के मौके पर वज़ीर आज़म ऐलान करें कि कैनाल्स का मनसूबा खत्म कर दिया गया है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का मुतालबा। MQM को भी तनकीद का निशाना बना डाला। बोले, हादसात पर सियासत की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक है। जिन लोगों की सियासत मर चुकी वो तनकीद कर रहे हैं। कुछ लोगों को सियासत के लिए जलाओ घिराव चाहिए। ओगरा का आवाम को ईद का तोहफा, LPG महंगी कर दी। माह अप्रैल के लिए LPG की फी किलो कीमत में 54 पैसे का इजाफा। घरेलू सिलेंडर 6 रुपये 40 पैसे महंगा। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2,930 रुपये 71 पैसे मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ईद के रोज कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के झटके। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 4.7 रिकॉर्ड की गई। जल्जले की गहराई 19 किलोमीटर और मरकज कराची के शुमाल में 75 किलोमीटर के फासले पर था। ईद की सुबह भी कराची के 2 बदकिस्मत शहरी ट्रैफिक हादसे का शिकार। लांढी मंजिल पंप
पुल के करीब कोस्टर की टक्कर से एक मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, दूसरा जख्मी। जाँ बहक और जख्मी होने वाले बाइक सवार दोनों भाई हैं। 25 साला मीर मुर्तजा और जख्मी की शनाख्त 20 साला मीर अकबर के नाम से हुई। उकाड़ा के नवाही गांव में खौफनाक हादसा, तेज रफ्तार गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को कुचल दिया। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। एबटाबाद के इलाके काला पुल में नमाज ईद के बाद मस्जिद में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के बाद भगदड़ मच गई। लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। थाना सराय मुगल पुलिस हिरासत से फरार होने वाले 2 डाकू ट्रैफिक हादसे में हलाक। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान को मोटरसाइकिल बरामदगी के बाद थाने वापस ले जाया जा रहा था। जागूवाला रोड पर मुल्जिमान के 3 साथियों ने छुड़ाने के लिए हमला किया। मकबूजा कश्मीर, भारत बांग्लादेश में भी आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। दिल्ली की जामा मस्जिद में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा हुआ। ओमान, इंडोनेशिया, ब्रुनाई में भी आज ईद। बरतानिया, अमेरिका, कनाडा में मुस्लिम कम्युनिटी तकसीम, बाज ने कल और बाज ने आज ईद मनाई। गाजा में ईद पर भी मौत का खेल। खान यूनुस, जबालिया, अल-मवासी और गाजा सिटी में बमों की बारिश। 48 घंटों में खवातीन और बच्चों समेत 80 फलस्तीनी शहीद, 305 जख्मी। रफा के करीब तल सुल्तान से रजाकारों की 14 लाशें मिली। शहदा में रेड क्रिसेंट के 8 अरकान, शहरी दिफा के 5 कारकुन और 1 UN वर्कर शामिल। शहदा की मजमूई तादाद 50,000 से तजावुज कर गई। गजा और लेबनान के तल्ख वाक़यात ने माह रमजान में मुसलमानों का दिल छलनी कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का तेहरान में मरकजी इज्तिमा से खिताब। कहा, इस खत्ते में सिर्फ एक प्रॉक्सी है जो कि गाज़ा पर फासिद सहूनी इसराइली हुकूमत है। फलस्तीन से सहूनी हुकूमत को जड़ से उखाड़ना जरूरी है। अगर दुश्मन कोई शैतानी हरकत करे तो ईरान सख्त और भरपूर जवाब देगा। म्यांमार और थाईलैंड में ज़लज़ले से तबाही, हलाकतों की तादाद 1700 से तजावुज़ कर गई। अमवात की तादाद 10,000 से तजावुज़ करने का खदशा। माहिरीन का कहना है म्यांमार और थाईलैंड में हालिया ज़लज़ले की ताकत 334 एटम बमों से खारिज होने वाली तवन्नाई के बराबर थी। ज़लज़ले के आफ्टर शॉक्स कई महीनों तक महसूस किए जा सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का म्यांमार के हम मनसब से टेलीफोनिक राबता तबाहकुन ज़लज़ले पर ताज़ियत, कीमती जानों और इमलाक के नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ज़लज़ला मुतासिरीन के लिए हर किस्म की मदद फराहम करने के लिए तैयार है। NDA में तकरीबन 70 टन इमदादी सामान म्यांमार के लिए रवाना करेगी। म्यांमार के वज़ीर-ए-आज़म ने शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी अवाम के हुस्न सलूक को सराहा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हैमिल्टन में प्रैक्टिस, खिलाड़ियों ने कोचेस की ज़ेरे निगरानी प्रैक्टिस की। खिलाड़ियों ने वार्म अप ड्रिल्स में भी हिस्सा लिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का दूसरा वनडे मैच बुध को खेला जाएगा। न्यूजीलैंड को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल।